mind-numbing rape incident from the national capital that we've been reporting on. Days after the rapist and his wife were arrested from Delhi, India Today has accessed CCTV images of the time when the duo attempted to escape. They tried to flee their locality at 9:30 a.m. in the morning, shortly after the news of this horror story broke out. The Delhi government officer says charges framed against him are false. In the backdrop of DCW chief's protest, the mother of the survivor appealed for privacy, stating that her daughter doesn't want to meet anyone right now. Maliwal has been sitting on an overnight dharna at the hospital, claiming that she was prevented from meeting the victim, but the politics over the Delhi shocker continues to peak. Nobody till now, apart from the Delhi police, has actually met the survivor or the mother. So it is very important that an external agency, which is an autonomous body, should meet the mother and the mother or the survivor. Now, NCPCR, I believe, has met. But have they raised this important question that why is it that the Delhi police was silent for 8 days and did not arrest the man immediately? However, we have issued notices to the Delhi police as well as the Delhi government. I want to proceed with this case, and for that a meeting with the survivor is extremely important. In case the survivor or the mother does not wish to meet me, because I can understand there's a lot of trauma and all that has unfolded can be very, very traumatic, and it's a very serious case. So I can be allowed to meet them and they can say that to my face. At least I will be assured. इसका मतलब साफ साफ है कि वहां अधिकारियों को तो जानकारी थी, लेकिन उन्होंने डेटाबेस में नहीं दिया, बल्कि इलीगल तरीके से उस बच्चे को घर ले जाके इस डिप्टी डायरेक्टर ने उसका यौन शोषण किया। ये सीधे सीधे ट्रैफिकिंग का मामला है। ट्रैफिकिंग के बाद सेक्सुअल अब्यूज का मामला है। और सरकार को, जब राज्य सरकार को पिछले 9 दिन से ये बात पता चल चुकी थी, तब वो इस पे हाथ रख के क्यों बैठी थी? दिल्ली सरकार ने इस ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए क्या कार्रवाई की, या इसको अपने ऑफिस से हटाने के लिए क्या कार्रवाई की, या डीसीडब्ल्यू ने जो आज धरना कर रही है, धरना दे रही है, उसने 7-8 दिनों में इस बच्ची से मिलने का क्या प्रयास किया, या उनके द्वारा बनाए गए सीडब्ल्यूसी के सिस्टम ने इस बच्ची के संरक्षण के लिए क्या काम किए, या किस प्रकार से उनकी सरकार में एक सिस्टम नहीं है जहां पर ऐसा प्रेडेटरी ऑफिसर जो बाल और महिला शोषण के खिलाफ जिसको काम करना है, वही बाल और महिला शोषण में लगा हुआ है, ऐसे ऑफिसर को आइडेंटिफाई करने का क्या सिस्टम है? I want to now take you through some of the CCTV images that have been procured by India Today. On camera, you can see the Delhi rapist in church on the 20th of August. Mind you, the FIR was lodged on the 13th of August. This man roamed free till the 21st of August. On the 14th of August, he had even gone and given his statement. But visuals of him in church, attending the Sunday Mass, and like nothing has happened, all of that. And then trying to flee on the August 21st morning when the news broke at 9:45 a.m. These are visuals coming in from the church where this man, a deputy director in the Women and Child Development Department of the Delhi government, can easily be seen mingling freely, fearlessly. When an FIR was registered, once again I'll repeat, viewers, on the 13th of this month alone. I want to cut across right now to Arvind Ojha, who is joining us live for more details. Arvind, you know, these जो सीसीटीवी की इमेजेस निकल के आ रही हैं, अरविंद, साफ है कि बिना कुछ उसको फैक्टर किए ये आदमी खुला चर्च जा रहा है, घूम रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है। इसमें जो पुलिस है उसका क्या कहना है? अभी इतना टाइम क्यों लगा अरविंद? नहीं, देखिए, पुलिस पर तो कई सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि देखिए 13 अगस्त को एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। काफी हीनियस क्राइम था, पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज होती है, 376 लगता है, 120 भी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज होती है। और उसके बावजूद भी जो अक्यूज्ड है वो फ्रीली घूम रहा था। अगर इंडिया टुडे ने ये सीसीटीवी एक्सेस किया है जो बुराड़ी चर्च का है, विक्टिम ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि इस चर्च में भी उसके साथ मोलेस्टेशन किया था जो अक्यूज्ड है उसने। बावजूद इसके 13 अगस्त को एफआईआर लॉन्च होती है और ये
20 अगस्त का सीसीटीवी है बुराड़ी का। अब बकायदा जो अक्यूज्ड है फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर वो इस चर्च में आता जाता दिखाई दे रहा है। सवाल यही उठा रही है, चाहे वो DCW चीफ स्वाति मालीवाल हो कि दिल्ली पुलिस पर वो सवाल उठा रही है। और साथ ही साथ दिल्ली पर पुलिस क्या कर अरविंद, रही एक थी? बहुत बड़ा सवाल है जो प्रेमोदय खाखा है, जब ये FIR रजिस्टर हुई थी, ये तो पॉक्सो के तहत रजिस्टर हुई थी, तो ये तो इमीडिएट अरेस्ट मांगता है उस एक्ट के तहत। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा, इमीडिएट अरेस्ट मांगता है। खासकर से पॉक्सो एक्ट की अगर FIR दर्ज होती है, लॉन्च्ड होती है। दिल्ली पुलिस ये दलील दे रही थी कि 164 का स्टेटमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जो विक्टिम्स है वो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से। लेकिन जब पॉक्सो एक्ट की FIR दर्ज होती है उसके बाद पुलिस अमूमन जो केसेस में देखा गया है वो तुरंत अक्यूज को नैप करती है, अरेस्ट करती है। कुछ नहीं तो कम से कम नोटिस भेजकर पूछताछ की जानी चाहिए थी अक्यूज से। अक्यूज इतना फ्रीली कैसे घूम रहा था जब उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अलग ऐसे कई मामले हमने देखे हैं कि जैसे ही FIR लॉन्च होती है अक्यूज को डिटेन किया जाता, उसको अरेस्ट किया जाता। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की FIR दर्ज थी, लड़की की हालत ठीक नहीं थी, उसकी जो अक्यूज है उसकी वाइफ के खिलाफ भी FIR लॉन्च है। कई जो सीरियस चार्ज उसके ऊपर लगे थे, बावजूद इसके अगर आप ये CCTV देखिए जो हमने एक्सेस किया, इसमें जो अक्यूज्ड है बकायदा वो फ्रीली चर्च आता जाता दिखाई दे रहा है। वो तो इंडिया टुडे ने जब खबर दिखाई उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, और इंडिया टुडे ने जब न्यूज ब्रेक की उसके 3 से 4 घंटे के अंदर अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। कैसे, पहले क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया? यही सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहा है। बहुत शुक्रिया अरविंद कि आप हमसे जुड़े। Thank you. My colleague Arvind Oja there accessing the CCTV footage coming in on the 20th of August, and while the FIR was lodged on the 13th of August. We're going to keep a keen eye on all developments with that.